Hello students, this is the fourth part of real numbers. Okay, today I discuss in my video class revisiting irrational numbers because already you are familiar about irrational number in the 9th class. Okay, so you will prove this number is irrational number. So first of all, what is irrational number? Okay, already known, but I will discuss in my video classes because our Honorable Prime Minister declared the new national education policy start because डिटेल्स से तुमको पढ़ना है बेटा, ठीक है ना। डिटेल्स एकदम इरेशनल बारे में तुमको जानकारी होना चाहिए एंड इन दिस टॉपिक ओके इन द क्लास 10 CBSE बोर्ड सो प्रूव दैट दिस नंबर इज इरेशनल नंबर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस द व्हाट इज इरेशनल नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट व्हाट इज एन इरेशनल नंबर. Okay, first we will discuss the what is an irrational number. Okay, the ध्यान से तुम लोग पढ़ोगे what is irrational number? A number which cannot be written by expressed, okay, written as P by Q form. Okay, P by Q form. समझ गए ना. A number which cannot be written as P by Q form, where P and Q are co-prime numbers, okay, but Q not equal to 0, this number is called irrational number. Okay, so according to definition, because ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमेशा ही बोल रहे हैं डिटेल्स से बच्चा को पढ़ना बेटा. अगर डिटेल्स से पढ़ोगे तो समझ जाओगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ए नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटेन बट व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाय क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स. पी एंड क्यू आर को प्राइम्स मीन्स पी एंड क्यू हैविंग द एच शेप इज 1. ओके, जो नंबर का दोनों नंबर पेयर ऑफ टू नंबर्स by a pair of numbers having a shape is 1 is called, that is two number is called the co-prime numbers. So P and Q are having a shape 1 and Q not equal to 0, the denominator should not be 0, so it write the but Q not equal to 0. This number is called irrational number. Next type of irrational number. Okay, टाइप ऑफ इरेशनल नंबर्स. ये नॉलेज होना चाहिए बेटा, तब तो तुम लोग को प्रूव करोगे कि इट इज इरेशनल नंबर. ओके, दिस इज द टाइप्स ऑफ इरेशनल नंबर. सो 0.01 100 10040 and then 40 and 1 and then comma, it is also the irrational number, and 0.21 211 2111 21111 2 are irrational number. This form is called the irrational number. Now next name root 2 root 3 root 5 root 6 root 7 and root 11 etc. are irrational number. So pi is an irrational number while 22 by 7 is a rational number because 27 is form of the P by Q form. Now q root of 2 q root of 3 and q root of 5 q root of 6 etc. are irrational number. Okay, our topic is you will have to prove, okay, you have to prove root 2 root 3 root 5 root 6 root 7 root 8. okay, किसी एक नंबर को तुमको प्रूव करना है जो irrational number. Okay student, so prove that root 2 is an irrational number. Okay, see like that root 3 root 5 root 6 root 7 root 8 root 11, okay, root 10, like that. First of all root 2. First let
let root 2 be a rational number. फर्स्ट हम लोग को थिंकिंग कर लिया ए रैशनल नंबर, ठीक है बेटा। देखो लेट रूट 2 बी ए रैशनल नंबर फर्स्ट स्टेप, देन यू कैन राइट देयरफॉर रूट 2 is equal to p by q because root 2 is a b is a irrational number. So where what is the p and q? Where p and q are co-prime. ये तो हम लोग को सीखा बेटा, co-prime number, okay, but q not equal to 0. ये तो हम लोग को सीखा। यदि अगर रैशनल नंबर होगा p by q फॉर्म, p and q are co-primes but q not equal to 0, then this implies squaring on the both sides, root 2 and square equal to p by q square. So हम squaring on both sides, squaring on both साइड्स, हम दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दें, रिजल्ट विल बी दैट इज द रिजल्ट 2 इक्वल टू p बाय p स्क्वायर बाय q स्क्वायर, ओके, बोथ आर स्क्वायर. नेक्स्ट राइट कैन राइट, सो टेक दिस नाम, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, देन q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2. Okay, next you write 2. देखो here look at 2 divides p square. This implies 2 divides as well as 2 divides p. अगर 2 यदि p स्क्वायर को डिवाइडेड कर सकते हैं, सो 2 डिवाइड्स p, क्या मिला हमको? 2 is a, so 2 is a factor of p. Okay, now putting p equal to 2m. okay, because root 2 को प्रूव कर दिए 2. अगर you want to prove that root 3 is a rational number, so you will take p equal to 3m. okay, m क्या होगा? m सम इंटीजर, कहाँ पे? इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो, मैंने यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है ना? अगर रूट 3 को पुट करोगे रूट 5, तो देन p इक्वल टू 5m. अगर यू वांट टू प्रूव द रूट 7 इज इरेशनल नंबर, सो p इक्वल टू 7m. m इज द सम इंटीजर्स, इन इक्वेशन 1 में हम पुट करें. नाउ गेट द रिजल्ट. दिस इज 2 इक्वल टू, यार p का रिप्लेस करोगे 2m स्क्वायर एंड q स्क्वायर. गेट द रिजल्ट. नाउ दिस implies get 2 इक्वल टू 4m square by q square. Now this implies the cross multiply, it has the 1, so 4m square is equal to 2q square. okay, now right here is the, मेरे बोर्ड खत्म हो गया. सम नाइट हम यहाँ पे कर देंगे, ए साइड में कर दें, ठीक, ए साइड में कर दें. आफ्टर दैट, okay, this implies okay, so m square is equal to 2q square by 4. okay, now 2 cancel, write the 2. next this implies m square equal to q square by, clearly लिखेंगे. okay, I want to clear. next clear देखो, m square equal to q square by 2. okay, now clear. This implies m square equal to q square by 2. Here look at the, here 2 divides
2 divides q square. This implies 2 divides q. तो हमको क्या मिल रहा है? 2 is a, so 2 is a factor of q. देखो यहाँ पे 2 is a factor of p and here 2 is a factor of q. So therefore 2 is a common factor. Common factor of p and q. वो खत्म हो गया. अगर 2 p का भी q का भी कॉमन फैक्टर आ गया, इसका मतलब हम जो लिखा है यहाँ पे p एंड q को प्राइम्स, माने इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं. को प्राइम्स मीनिंग देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q. आपको मेरा को मिल गया p एंड q, चलो को फैक्टर नहीं है. p एंड q का हमको क्या रिजल्ट मिला? इट इज नॉट द को प्राइम नंबर्स, सो इट हैज द फैक्टर. ओके, p एंड q हैव नो, माने p एंड q आर को प्राइम्स मीन अगर p एंड q हैव नो द कॉमन फैक्टर, सो 2 कॉमन फैक्टर मिल गया. So it is not the mirror. चलो our thinking क्या होगा? Our thinking was wrong, जो हम यहाँ पे p के लिए. So our thinking was wrong. गलती हो गया कि हम लोग का गलती, हम लोग को लिया था लेट करके. चलो हम क्या बोलेंगे? hence √2 is an irrational number. Okay, irrational number. Proof. ओके, ठीक इसी टाइप का √3. ओके, √3 √2 करोगे कि श्रुति लिखा. सो द √2 is an irrational number. Prove that. Think like that. You want to prove that the same number will be proved that here. So you can prove that similarly. इसी टाइप को प्रूव करोगे. जब √3 को प्रूव करोगे, √5 को करोगे, √6 को करोगे, √7 एंड √8, √10, ओके, √11, ओके, एज सो ऑन. इसी टाइप का, ठीक इसी टाइप का. जहाँ पे √3 लिखा, यहाँ पे 3 लिख जाओगे. ओके, 3 लिखोगे. यहाँ यदि 5, यहाँ 5 लिखोगे. यहाँ यदि तुम 6 कहोगे 6 लिखोगे. इसको चेंज करोगे बेटा. सेम प्रोसेस इसी टाइप को करोगे. बार बार मेरा वीडियो को देखोगे, तब तुम लोग यू कैन प्रूव दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन विल कम द पॉज दिस वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी. ओके स्टूडेंट्स, देखो सेम रूल अप्लाई. अगर यू वांट टू प्रूव दैट 3 प्लस √2 और 3 प्लस 7 प्लस √5 एनी नंबर 3 माइनस, जस्ट एग्जाम्पल लिया. ये भी तुम्हारा सिलेबस में रिलेटेड में है. देखो तो फर्स्ट 3 प्लस √2, 3 माइनस √2, 1 अपन √2, 7 इंटू √2 आर इरेशनल नंबर. सो हम एक कर देते बेटा. कैसे करोगे? ठीक इसी टाइप करोगे. अगर √2 का प्लेस में हैविंग द यहाँ पे 3 प्लस √5 कुछ भी नंबर होगा, सेम प्रोसेस जैसे हम इसको करेंगे इसी टाइप करोगे. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर. जो रूट में रहेगा ना, इसको फर्स्ट प्रूव करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल √2 को प्रूव करोगे जैसे हम क्या था उसी टाइप का. इसमें यदि √5 देगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर. सो देन यू राइट. ओके, सपोज हम लोग को देखो यहाँ पे हम कर लिया. जब हम अभी प्रूव करने गए, जो कैन प्रूव दैट. सो ओके, हम जैसे प्रूव दैट, एक सिलेबस में है. देखो बेटा, प्रूव दैट 3 प्लस √2. यहाँ हम प्रूव करेंगे इज एन इरेशनल नंबर. ओके, इरेशनल नंबर्स. ओके, इरेशनल नंबर्स. ओके, इरेशनल नंबर प्रूव करोगे. सो देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू प्रूव द √2 इज एन इरेशनल नंबर. जैसे हमने आगे वाला किया था, √3 जैसे करोगे, यहाँ पे √3 देगा, √3 को प्रूव करोगे. जैसे √2 किया ना, सेम मसेज, खाली 2 का जाएगा 3 लिख जाओगे. अगर यू वांट टू √5 को, √2 का जाएगा 5 लिख जाओगे. सेम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव हो गया. देन सो लेट करके लिखोगे, लेट 3 प्लस √2 बी ए रैशनल नंबर. ठीक है ना, ये हम लोग का लिखना पड़ेगा. रैशनल नंबर शॉर्ट फॉर्म में नंबर लिख देगा. नेक्स्ट यू लाइक दैट. So it is the rational number. So I can write
√2 equal to P by Q. Okay, here देखो where P and Q co-primes are co-primes. Co-prime means there is no common factor, co-primes, but Q not equal to 0. हम लोग ये बोला लिखने पड़ेगा बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉमिस, देखो हम लोग जब इसको हम लेट लिया √3 बी ए रेशनल नंबर, so 3 plus √2 and P by Q, where P and Q are co-primes but Q not equal to 0. ये लेना पड़ेगा. नेक्स्ट हम कैसे करेंगे इसको, हम लोग √2 को कैसे प्रूव करेंगे. देखो फर्स्ट दिस सिंबल वेरी इजी. फर्स्ट ऑफ किंतु √2 को प्रूव करने पड़ेगा. देन √2 इक्वल टू P by Q and transpose the 3 minus 3. Then this implies √2 is equal to Q LCM, so P minus 3Q. Okay, look at this equation. Left hand is a rational number, but right hand is a rational number. देखो √2 is a rational number. बस फर्स्ट में प्रूव कर लिया. प्रूव करोगे बेटा, तो हमको क्या हो गया, तो √2 and is not equal to, तो लेफ्ट हैंड LHS left hand side is not equal to right hand side, because left hand having the irrational number and right hand having the rational number. So proof हो गया. तो my thinking क्या हुआ था, wrong हो गया. तो our thinking क्या हो गया बोलो तो, our thinking was wrong. हम लोग की चिंता होना गलत हो गया. तो हम क्या बोलेंगे, कंक्लूड कर सकते हैं. वी कैन कंक्लूड, क्या सकते हैं, हेंस देखो क्या लिखेंगे, 3 plus √2 is an irrational number बेटा, is an irrational number. ओके, एकदम आराम से करोगे irrational numbers. प्रूफ हो गया. इसी टाइप का, लाइक दैट, नो टेंशन. You can prove that 3 minus √2, 1 by √2, okay, rational number करोगे then okay, and both sides should be the equal. Left hand देखो √2, okay, is a irrational number, right hand the rational number, तो not equal to, तो thinking wrong होगा. लेकिन first of all ध्यान में रखोगे, √2 को first of all prove the irrational number, जैसे हम किया था. ठीक इसी टाइप का देखो हम लोग को यदि अगर ये देगा कोई नंबर, देखो यहाँ पे 7 plus √11, तो first of all prove the √11 is irrational number, then you like that. Okay, then अगर 7 माइनस यहाँ पे √11 देगा, ठीक इसी टाइप का करोगे, √11 को करोगे लाइक दैट. ओके, समझ कर सीखो, ठीक इसी टाइप का करोगे. पॉज दिस वीडियो एंड नोट डाउन ऑन योर कॉपी. ओके बच्चा, स्टूडेंट्स देखो प्रूव दैट, ये भी क्वेश्चन आ सकते इसी टाइप का भी. देखो √2 plus √3 इज एन इरेशनल नंबर. तो हाउ टू प्रूव, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान में रखोगे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रूव √2 और √3 को इरेशनल नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा ऑप्शन, √2 को फर्स्ट तुम इरेशनल प्रूव कर सकते हैं, बा √3 को भी कर सकते हैं, दोनों में एक को करोगे बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सपोज √2 को हम प्रूव कर लिया, सपोज हम कर लिया √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये हम प्रूव कर ले बेटा, इज एन इरेशनल नंबर बेटा, इरेशनल नंबर हम फर्स्ट टाइम किंतु प्रूव कर ले बेटा. फर्स्ट किंतु प्रूव करोगे जैसे हम किया था उसी टाइप का, एक वीडियो में जैसे बार बार दोगे. देन राइट, ओके, देन राइट लेट √2 plus √3 be ए रैशनल नंबर. ओके, हम इसको पहले हम लोग को प्रॉमिस कर लिया जो ए रैशनल नंबर बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल कर लोगे बेटा, किंतु ध्यान में रखो √2 का हम प्रूव कर लिया, √3 को भी कर सकते उसी टाइप का करोगे. नेक्स्ट हम क्या ए यदि रैशनल नंबर होगा, देखो हम यहाँ फिर लिखा, तो देन यू राइट, देखो वी कैन राइट 2 plus √3, इट इज ए रैशनल नंबर, सो ओनली राइट द पी. ये भी देखो रैशनल नंबर, इन पी ऑल्सो द रैशनल नंबर, जैसे 2 इज ए रैशनल नंबर, 2 by 1, P by Q फॉर्म, हमसे राइट द 1, यू कैन राइट थ्रू P by Q. और यहाँ परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना. P और रैशनल नंबर को देखो, दे हैव नो कॉमन फैक्टर, P and 1 का कोई कॉमन फैक्टर, दे इज सेफ हैविंग द 1. सो नाउ राइट, देखो यू हैव प्रूव, जो नंबर तुम प्रूव किया √2 का हम प्रूव किया था, √2 को राइट हैंड में ट्रांसपोज करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको हम प्रूव करोगे इरेशनल नंबर वो ट्रांसपोज हो जाएगा. सो √3 लेफ्ट हैंड आएगा, कीपिंग लेफ्ट हैंड, एंड P minus √2 राइट हैंड में ट्रांसपोज कर दिया. देन हम क्या करें, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड.
स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड इज इक्वल टू p माइनस रूट टू का स्क्वायर हो गया। तो हम क्या किया यहाँ पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यू राइट हियर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये हम लोग किंतु लिखने पर जो वर्क करोगे वो राइट हैंड में ब्रैकेट में लिखना है। सो देन इज द रिजल्ट इज 3। दिस इम्प्लाइज इक्वल टू होल स्क्वायर फॉर्मूला p स्क्वायर माइनस 2 इंटू p इंटू रूट टू प्लस रूट टू का स्क्वायर। ओके, सो a माइनस b होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस b स्क्वायर, देन 3 इक्वल टू p स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे 2 रूट टू p प्लस 2 का स्क्वायर, रियल नंबर से का कोई भी नंबर का रूट टू स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट ट्रांसपोज देखो, से लेफ्ट हैंड लेकर आओगे तो 2 एक साइन चेंज हो जाएगा बेटा, इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 3 सॉरी बेटा प्लस 2 एंड कम इन द ट्रांसफर माइनस 3। दिस इज द रिजल्ट, रूट टू p इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 and then root 2 equal to p square minus p square minus 1 by 2p। ओके, सो देखो हियर हम पहले रूट 2 को प्रूव कर लिया, जैसे क्या था उसी टाइप का जो फर्स्ट हम क्वेश्चन में किया था उसी टाइप प्रूव कर लिया रूट 2। तो मेरा देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे क्या इरेशनल नंबर, राइट हैंड में तो रैशनल नंबर। So left hand LHS is not equal to RHS. Very good. RHS not equal to, because left hand irrational number, right hand rational number। मेरा फेल हो गया। तो our thinking क्या हो गया, जो हम लोग का लेट किया था our thinking क्या होगा, was wrong। हम लोग का स्टेटमेंट में रॉन्ग आ गया, ठीक है ना बेटा, रॉन्ग हो गया। तो हेंस हम लिख सकते हैं hence okay, so root 2 plus root 3 is an irrational number। समझ गए बेटा, irrational number प्रूफ, ये हम लोग को प्रूफ कर दिया। तो इसे ध्यान में रखोगे, लेकिन बार बार मेरा वीडियो को देखोगे, रूट 2 को जैसे किया था रूट 3 को इसी टाइप करोगे, सेम एवं कोई डरना नहीं बेटा, आराम से करोगे, कोई दिक्कत नहीं। पॉज दिस वीडियो एवं नोट डाउन ऑन योर कॉपी। सो हम तुम लोग को सामने रिक्वेस्ट करें, मेरा चैनल को तुम लोग देखो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे एंड शेयर करोगे दोस्त के बीच में। थैंक यू। हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे पॉलिनोमियल्स ऑफ द 10th क्लास। ओके, पॉलिनोमियल्स चैप्टर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ओके।